Hi everyone. So from today, I will be starting a new initiative for the UPSC CSAT syllabus, and in this UPSC CSAT, we'll be starting with the mathematics first, then going towards the reasoning, and in the end, we will be finishing off with the reading comprehension. So this is mainly the UPSC syllabus. We have 2 hours of time and 200 marks of question. We have comprehension, and then interpersonal skills, reading communication, then logical reasoning, decision making, general ability, and the basic numeracy. That is the mathematics section. That is the number system. So the first topic I will be starting with is the number system, and know that everyone does not have the basics clear for the number system. That's why they get problem when they are going to solve the next set of question. Okay. Okay, this is the way. So I'll first start with the number system. In the number system, I will be teaching numbers and their relation. In the numbers and their relation, I will be teaching odd and even. How we can means how we can use this odd and even form to solve a few of the question. Then we'll go towards the factor. In the factor, we'll read prime factorization method maybe, and apart from that we'll read what are prime numbers and what are the composite number. Then we have face value and place value. Then types of number, will be also reading the factor, and the fact with the factor I will be teaching you also divisibility, then cyclicity and the remainder. And with the starting, I'll try to get the most problematic area, that is the difficult one first, and then we'll move towards the other section. So the most difficult one, I think, will be the remainder theorem, and the finding the number of zeros, and maybe the cyclicity and the division. So these four I'll try to finish it today, and then we can move forward. And in the next set of my videos, I'll try to cover all other left, and then we'll go like this. So in the every chapter I will be completing first the toughest topic, and then we'll move towards the easiest topic. And in the going towards the toughest topic, I will start with the basics first, then move towards the tough work, and we'll be completing that. And similarly, we'll be completing all of it. So we'll start with the first part, that is the types of number. What are the different types of number? In the real life, we have one real number and one is unreal number. And in the unreal number, we can say something like iota and all that we do not have to study, and that is complex. We generally call it as complex number, so we do not have to study. So else means in general term, that is in the 12. So in the general, we just have to read real number. In the real number, we have two things: one is rational number and one is irrational number. Okay. uh, okay, then after that, in the rational number section, we have integers and the fractions. Okay. In the integer section also, we have positive numbers and we have negative number. In the integer section, everything like suppose we have -3, -2, -1, 0, 1, 2. All these consist of integer. And like this, let's suppose we have 3 by 5, 4 by 5. These all numbers are fraction and the mixed number. Okay. Going towards next set, we have positive numbers and negative number. I'm just completing this basic a little faster so that we can move towards the cyclicity section, the divisibility section, and the remainder theorem. Okay. Then in the positive section, the positive numbers, it consists of 0 plus all other positive numbers. So that will become, the whole will become a whole number. And the whole number section, we have 0 and the natural numbers. If we remove from the whole number, if we remove 0, then other part is the natural number. Okay. And going towards the means going ahead in the journey, the natural number is divided on two bases. Okay. One is on the basis of factor. On the basis of factor, we are dividing it into prime numbers, composite numbers, and we have one apart from that. And on the basis of divisibility, that let's suppose I have a number 10 and that is divisible by 2 or not. According to this, we are dividing that number into even and odd number. Okay. So I'll start with the first question. The first question is, let's try to solve this question. The first is, find the value of a and b if it is 4 1a plus b 4.
इक्वल टू 5.2. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट जनरली कम्स इन द रीजनिंग सेक्शन, ठीक है, रीजनिंग में आता है. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस. तो हमें क्या करना होगा कि ये ए और 4 को चेक करना होगा. A+4 = 2. ऐसा कब हो सकता है? जब यहाँ पे 1 हो. ओके. सो यहाँ से डायरेक्टली ए क्या आ रहा है हमारे पास? 8 आ जा रहा है. ओके. सो हमारे पास 8 आ जा रहा है, तो जो 8 आ जा रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? ए की जगह पे 8 हो जाएगा. देन वी हैव 4 1 8 एंड B4 इक्वल, सॉरी, दिस इज B4 = 5.2, ठीक है. यहाँ से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से B = हमारे पास 9 आ जाएगा. सो A = 8 हो गया एंड B = 9 हो गया. दिस इज हाउ वी सॉल्व इट. मतलब चेक कर लेंगे, एकदम सिंपली चेक करना है. विल गेट द नंबर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी दिस वन. ओके. यहाँ पे इफ वी विल सी वी हैव AA + AA, ओके, = ZAX. अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देर आर 3 डिजिट नंबर. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि देर आर 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट नंबर होने के लिए कोई, ये क्या है कि टू ऑफ एनी नंबर है, 2 डिजिट नंबर है. ओके. 2 डिजिट नंबर है, उसके लिए क्या होगा कि 50 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो वो 100 से प्लस होगा. ओके. सो 50 से ऊपर होना चाहिए. 50 से ऊपर क्या हो सकता है जिसमें ए आए? तो ऐसा क्या हो सकता है? 55 हो सकता है, 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 88 हो सकता है, 99 हो सकता है. दैट्स इट. इसमें से हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा हो सकता है, एंड विल पुट इट. तो डबल करके देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1110 हो जाएगा. इंटू टू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा. और यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो बीच वाला नंबर है वो सिमिलर होना चाहिए ए के तरह. ओके. ठीक है. ऐसा दिया हुआ है कि ए की तरह सिमिलर होना चाहिए. तो हम लोग चेक कर लेंगे कि किस में वैसा सिमिलर आता है, उससे भी बन जाएगा ये सिंपल. ठीक है. इंटू टू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा. 77 × 2. ओके. इंटू टू करेंगे, 176 हो जाएगा. इंटू टू करेंगे तो ये 196 हो जाए, 198 हो जाएगा, सॉरी. तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एन जो है, ये 9 जो है सिमिलर टू ए हो रहा है. तो हमारा आंसर जो है A = 99 हो जाएगा. एंड दिस विल बी आवर नंबर 198. ओके. ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली. इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे थे, जस्ट सिंपल सॉल्यूशन था, A+A करके. ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट ऐसे ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है ये नंबर्स. ओके. सो देन मूविंग टुवर्ड्स ऑड एंड इवन. ऑड एंड इवन में सिंपल एक तो ट्रिक बता देते हैं, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन. ओके. सो सबसे पहला क्या होता है कि ऑड में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हमें ये प्रॉब्लम होता है कि ऑड प्लस इवन क्या होगा, इवन प्लस इवन क्या होगा, फिर ऑड डिवाइडेड बाय ऑड करेंगे तो क्या होगा. ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है. तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम आए इस तरह का, सो द बेस्ट थिंग इज सो द बेस्ट थिंग इज राइट इन द प्लेस ऑफ ऑड यूज वन, एंड इन द प्लेस ऑफ इवन यूज टू. ओके. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. सिंपल, नथिंग मच. मतलब 2 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द आंसर्स. ओके. ठीक है. एनीवेयर यहाँ पे भी यू, इफ यू विल ट्राई दिस, यू विल बी एबल टू सॉल्व. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि P एंड Q आर 2 ऑड नंबर्स एंड RS आर 2 इवन नंबर्स. ऑड है तो 1 1 हो जाएगा, एंड ये 2 2 हो जाएगा. 2 2 पुट करके देख लेते हैं, विल बी एबल टू गेट. ओके. सो ये क्या है? 2 2 - 1 हो जाएगा ये. ओके. 1 - 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ओके. एंड फिर इसके बाद Q एंड S है, तो Q एंड S क्या हो जाएगा? 1 × 2. तो ये यहाँ से क्या आ गया? ये इवन आ गया. सो इफ इट इज, मीन्स यहाँ पे अगर इस जगह पे ये नंबर सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये चीज सॉल्व करेगा. ओके. सिंपल. सिमिलरली यहाँ पे भी पुट करके देखेंगे, एंड यहाँ पे भी पुट करके देखेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट कि हाँ ऐसे हम बना सकते हैं. बट टुडे आई विल जनरली
teaching the cyclicity and the remainder theorem part. Okay, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो आई से कि यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में है दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इवन एंड ऑड. ओके, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब एक तरह से दिस इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द इवन एंड ऑड नंबर. एंड बहुत मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा जितना भी कॉन्सेप्ट होगा और फॉर द इवन एंड ऑड नंबर्स. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि वी हैव 100 पीपल इन अ जेल. ठीक है, एंड उस 100 पीपल में से सब पर्सन को कोई ना कोई एक कैप पहनना है. कैप या हैट बोल लेते हैं. ठीक है, और वो हैट का सिर्फ दो ही कलर है, या तो वो ब्लैक होगा या तो वाइट होगा. ठीक है, और हर एक पर्सन को एक ही कैप पहनना है. वो कोई भी कलर का हो सकता है. अब जो है सारे पर्सन को एक सर्कल में लेते आना है, मतलब 100% जो है वो सब सर्कल में आ गए, 1 से ऐसे 100 तक. ठीक है, 1 2 ऐसे करके 100 तक. ठीक है, 100 तक आ गए सारे नंबर्स. ठीक है, अब क्या करना है कि जो कोई भी एक पर्सन है वो और अदर 99 को देख सकता है, बट वो खुद को नहीं दे सकता है. लेट सपोज एक जेलर भी है वहां पे और उससे उसका कैप का कलर पूछा गया. अगर वो कलर गलत होगा तो उसको मार दिया जाएगा, अगर सही हुआ तो ही विल बी सेव्ड. सो हमें ये पता करना है इसमें से कि कौन सा स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे कि वो जो आदमी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आदमी उसमें से बच सके. मीन्स 100 में से मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बच सके. सो ये क्वेश्चन. ओके, सो ट्राई सॉल्विंग दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स फैक्टर. फैक्टर्स क्या होते हैं? लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है 10. ठीक है, सो ये 10 जो है वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, दैट इज फैक्टर. ओके, सो वो किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है एंड 10 से हो सकता है. तो ये जो चार हुआ ना, ये चार, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10. ओके, so for this factor also I will give one of the question and you try solving that. अगर if you are able to solve this factor वाला question then that is very good, मतलब आपको factors बहुत अच्छे से आते हैं. मीन्स ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ट्राई सॉल्विंग लाइक दैट ओनली. ठीक है, लेट सपोज home we have a home. Okay, and in that home we have, let's suppose, 1000, uh, let's suppose we have 10,000 room. Okay, and in that we have numbering from 1 to 10,000. ठीक है, and we have persons from 1 to 10,000. Okay, so whenever a person goes, he will uh, he will open the door in the multiple of himself. ठीक है, so let's suppose one is going, then one will go in the one, then two, then three, then four, like this. And then we have two, so two will be going in the second one, then fourth, then sixth, then eighth, like this. And similarly three will be going in the third, uh, three will be going in the third room, then sixth room, then ninth room, and similarly like this. So let's suppose whenever a person is going, let's suppose one is going, in starting all the doors are closed. Okay, up 1 to 1,000 all the doors are closed. Okay, when the first person will go, he will open all the door. Okay, then when the second person will go, he will just whichever gate will be open, he will close it. Means जो भी कोई गेट होगा, जैसे लेट सपोज अगर ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा, अगर वो क्लोज है तो उसको ओपन कर देगा. तो यहाँ पे सारा गेट ओपन है, तो टू क्या करेगा? टू में जाएगा, टू में जाएगा तो इसको क्या करेगा? टू को ओपन कर देगा, सॉरी क्लोज कर देगा, ओपन था तो. फोर में जाएगा तो क्या करेगा? फोर वाला भी ओपन था तो उसको क्लोज कर देगा. एंड सिक्स में जाएगा तो क्या करेगा? सिक्स वाला भी ओपन था तो उसको क्लोज कर देगा. ठीक है, एंड देन फिर थर्ड आएगा तो थर्ड क्या करेगा? थ्री वाला जो ओपन था, थर्ड थ्री वाला जो ओपन था उसको क्या करेगा? थ्री वाला जो ओपन था उसको क्लोज कर देगा, और सिक्स वाला जो क्लोज था उसको क्या करेगा? ओपन कर देगा. ठीक है, गॉट इट. तो हमें ये पता करना है कि हमें ये फाइंड करना है कि हाँ, इतना कितना डोर होगा, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डोर
which will be open. Okay, find. This will be the question. Find the total number of door that will be open. Okay, that is the question. Try solving that. ठीक है. Moving towards the face value and place value, I will be teaching it in the tomorrow section. Going towards the cyclicity. So I will be starting with the cyclicity first today, the broad topic, and then the remainder and the divisibility. These three will be my topic for today. Okay, let's start. सो साइक्लिसिटी में क्या करते हैं? सिंपल है, एक साइकिल बनना चाहिए। कोई भी हमारे पास नंबर हो, हमें क्या फाइंड करना है कि उसमें कैसा साइकिल बनेगा। ठीक है, तो साइकिल कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो लेट सपोज साइक्लिसिटी में हम लोग क्या करते हैं ना कि पावर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, पावर्स के बारे में जनरली देखते हैं। तो 2 पे पावर 1 है, फिर 2 पे पावर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होगा। ठीक है, दैट विल बी द साइक्लिसिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है ना, साइक्लिसिटी में हम देखते हैं कि जो यूनिट डिजिट है कहाँ पे जाके रिपीट होने लगता है। तो 2 पे पावर 1 क्या होगा? 2 होगा। 2 रेज टू पावर 2 क्या होगा? 4 होगा। 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा? 6 होगा। 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा? 8 होगा। 2 रेज टू पावर 5 क्या होगा? 12 होगा। 2 रेज टू पावर 6 क्या होगा? सॉरी, 16 होगा। सॉरी, 1 सेकेंड, आई जस्ट हैव रिटन समथिंग्स रॉन्ग। करेक्ट। सो 2 रेज टू पावर 1 होगा, 2 रेज टू पावर 4 होगा, 2 रेज टू पावर 8 होगा, 2 रेज टू पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। 2 रेज टू पावर कितना होगा? 32 होगा। 2 रेज टू पावर 6 जो है वो कितना होगा? 64 होगा। 2 रेज टू पावर 7 कितना होगा? 128 होगा। सिमिलरली 256 होगा। फिर 512 होगा। सिमिलरली 1024 होगा। 2 रेज टू पावर 10 एंड 2 रेज टू पावर 11 जो है वो 2048 होगा। 2 रेज टू पावर 12 जो है वो 4096 होगा। सो दिस विल बी आवर नंबर। अब देखते हैं कि साइक्लिसिटी इसका क्या बनेगा। सो एक बहुत बड़ा नंबर था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि 2 का साइक्लिसिटी निकालना है। ओके, हम क्या किए उसको स्मॉल में देख लेके 10 के लिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 10 में पैटर्न होगा वही आगे के 10 में पैटर्न होगा, सिमिलर। ओके, सो यहाँ पे क्या देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। फिर देखते हैं सेकंड में 4 है। थर्ड में देखते हैं 8 है। फोर्थ में देखते हैं 6 है। फिफ्थ में देखते हैं 2 है। फिर सिक्स्थ में देखते हैं 4 है। तो हमें क्या दिख रहा है कि 2 5 पे रिपीट हुआ, 4 जो है 6 पे रिपीट हुआ, 2 रेज टू पावर 7 जो है वो इस पे रिपीट हुआ, 2 रेज टू पावर 8 है, फिर 2 रेज टू पावर 9 है। सिमिलरली इस तरह करके यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि आफ्टर ईच 4, मतलब ईच पावर ऑफ 4 क्या हो रहा है कि साइक्लिसिटी जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज आर सॉल्यूशन। अब लेट सपोज हमसे पूछा गया कि लेट सपोज 2 रेज टू पावर 311 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इससे 4 का रिमाइंडर निकालेंगे। ये जो 4 का साइक्लिसिटी है, तो 311 का 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? 311 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 पे क्या था? 8 था, तो 8 विल बी आवर यूनिट प्लेस। ठीक है, ओके, दैट इज साइक्लिसिटी ऑफ 2। फिर 3 का देखते हैं। तो 3 रेज टू पावर 1 देखेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 3 रेज टू पावर 2 देखेंगे तो 9 होगा। 3 रेज टू पावर 3 देखेंगे तो 27 होगा। फिर 81 होगा। 81 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे 243 होगा। ओके, सिमिलरली ऐसे दिस विल कंटिन्यू। ओके, इसके बाद 7 to 9 होगा, एंड सिमिलरली दिस विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1, ये क्या हो जाएगा? 3 रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3, ये 3 रेज टू पावर 4, और ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 है पहले, फिर 9 है सेकंड में, फिर थर्ड में 7 है यूनिट डिजिट, फिर फोर्थ में 1 है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? फिर से 3 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि 6 पे भी ये रिपीट हो रहा है, 9 वाला ये टर्म। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि आफ्टर एवरी फोर 3 जो है रिपीट हो रहा है। तो 3 का साइक्लिसिटी यहाँ से क्या हो गया? 4 हो गया।
ठीक है। सिमिलरली जो जो था, मतलब अगर हम हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो सिंपल, सिमिलर यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो। लेट सपोज कितना ले लें, 113 ले लेते हैं, ठीक है, 113 ले रहे हैं, तो यहाँ से रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 113 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 3 रेज टू पावर 2 देखेंगे, 3 रेज टू पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या है, हमारे पास 9 है। सो यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 हो जाएगा। दैट विल बी आवर आंसर। ओके, डन। ठीक है, देन फिर उसके बाद एक और, इसी में दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना, और एक आता है डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करेंगे किसी भी नंबर को, वो भी यूनिट प्लेस ही देता है रिमाइंडर में। सो ये था हमारा सी सेट का क्वेश्चन 2024 का। आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व। ये क्या है, 3 रेज टू पावर 2019 है। 2019 है, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। ओके, तो 3 रेज टू पावर 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो 3 रेज टू पावर 3 में देख लेते हैं क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 7 हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली अगर हम 4 का देखेंगे तो 4 क्या क्या हो जाता है, 4 16 64, ऐसे करके लास्ट सिर्फ देखते जाते हैं, तो ये यहाँ से 4 का पता चला हमारा 2 है। 5 का क्या होगा, 5 के बाद 25, 125, सो 5 का साइक्लिसिटी 1 हो जाएगा। 6 का देखते हैं, 6 का क्या होता है, 6 का 36 होता है, फिर 36 2 1 6 हो जाता है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली वही हो जाएगा, 6 ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 7 का देखते हैं, 7 का क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, 49 होता है, 49 × 7 करेंगे तो 343 होता है। ओके, ठीक है, फिर 343 × 7 करेंगे 21, तो 1 आता है। और फिर 7 × 7 फिर से करेंगे, 1 × 7 करेंगे तो 7 आता है। ये सिर्फ लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं, बस लास्ट डिजिट देख रहे हैं। तो ये 7 रेज टू पावर 1 है, ये 7 रेज टू पावर 2 है, ये 7 रेज टू पावर 3 है, ये 7 रेज टू पावर 4 है, ये 7 रेज टू पावर 5 है। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, आफ्टर ईच 4 ये साइक्लिसिटी हो रहा है, मतलब ये आफ्टर ईच 4 द यूनिट प्लेस इज गेटिंग रिपीटेड। सो यहाँ पे क्या पता चला कि 7 का जो साइक्लिसिटी है वो 4 का हो जाएगा। सिमिलर, जो जैसा 2 का था वैसा ये भी है, और ये हमें सिर्फ यहाँ से लास्ट का ये डिजिट उठाना है, दैट्स इट। ठीक है, फिर 8 का देख लेते हैं। 8 का क्या होता है, 8 का 64 होता है, फिर 64 × 8 करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे हैं हम, 32 होगा। 32 × 8 करेंगे 6 होगा। ठीक है, 8 8 64, 32 ना, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग द यूनिट डिजिट, ओके, नथिंग। सो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि 8 का भी साइक्लिसिटी 4 है। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर 9 का देखेंगे, तो 9 का देखेंगे तो 1 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। यहाँ से इसका साइक्लिसिटी 2 पता चल जाएगा। सो दिस इज द वे वी आर गेटिंग द साइक्लिसिटी। ठीक है, so now you can solve the questions of cyclicity from any of the book and try solving it. And मेरे according you will be able to solve almost every question. Okay, ठीक है। So ये हमारा cyclicity वाला पार्ट था। Now moving towards the next section. ठीक है, so हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनता है, क्या बनता है, बट इसमें इफ़ यू विल सी बहुत सिंपल है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है। रिमाइंडर क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है। ठीक है, उसको क्या करना होता है, उसको किसी एक चीज़, एक नंबर से डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग डिविज़र बोलते हैं। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है। सो इसी को ऐड करके हम एक नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं। दैट इज आवर रिमाइंडर थ्योरम, सिंपल, और कुछ भी नहीं है रिमाइंडर थ्योरम में। ओके, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सो रिमाइंडर ऐसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज हम 39 ले लेते हैं।
और 39 को हम डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। या 39 को डिवाइड करेंगे 5 से ऐसे, तो 7 से होगा और यहाँ पे 35 आएगा। और ये रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये जो नंबर है ना, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। सिंपल, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, दैट्स इट। ओके, ऐसे ही निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कहाँ पे आता है वो बता देते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, x³ + 2x + 3। ठीक है, और ये जो है इसको हमें डिवाइड करना है x-3 से। ओके, तो x-3 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, x-3 x = 0 करेंगे, वहाँ से क्या हो जाएगा, x = 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 3 है ना इसमें पुट कर देंगे सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, ये x³ +2x + 3। ठीक, तो 3 × 3 × 3 + 2 × 3 × 3 ओके, ऐसा करके पुट करके देखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी आवर रिमाइंडर। ओके, उसका डिवाइड करने के बाद जो बचता है। ठीक है, ये हमारा जनरली वो क्वेश्चन होता है रिमाइंडर थ्योरम में। अब गोइंग टुवर्ड्स, एक प्रॉपर्टी होता है रिमाइंडर थ्योरम का जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों के लिए, कि हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज p है, a है, a⁻p−1 है, और ये डिवाइड बाय p है। तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो 1 होता है। ये ऐसा है, इसको एल एक्सप्लेन की कैसे होता है। ये जो p है ना हमारा, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। और ये a और p जो है, a और p जो है, ये को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, को प्राइम का सिंपल मीनिंग होता है ना, कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर है। ठीक है, कोई भी दो नंबर है, उसका HCF 1 होना चाहिए, दैट इज को प्राइम। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर है 4 और 9। ठीक है, इसका क्या होगा, 4 और 9 का HCF क्या होगा, 1 होगा। सो इसलिए हम इसे को प्राइम बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और नीचे वाला जो ये P है ना, इसको प्राइम होना पड़ेगा तभी ये चीज़, ये पॉसिबल है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, कि जो हमारा 2 है, 2 अगर लेट सपोज नीचे में 2 है, देन दिस विल नॉट सफाइस, मतलब ये वर्क नहीं करेगा। सो आई गिव यू वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, लेट सपोज वी हैव 5 और नीचे में हमारे पास है 3। ठीक, तो 3 है और ये 5 है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा, करेक्ट। ये 3 और ये p-1 है, तो 3 p-1 2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर अगर हमको निकालना पड़े तो 1 आएगा। और ऐसे भी यहाँ फॉर्मूला से भी 1 ही आ रहा है, या प्रॉपर्टीज से। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 5 × 2 क्या हो जाएगा, 5⁻², 25 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 1। ओके, दैट इज हाउ इट इज सॉल्व। ओके, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में सिंपल है ना, कि हमें रिमाइंडर निकालने के लिए मिलता है, दैट्स इट। अब लेट सपोज हमारे पास एक और इसमें रिमाइंडर थ्योरम में बहुत यूजफुल एक प्रॉपर्टी है, दैट आई एक्सप्लेन। लेट्स सपोज हमारे पास 30/4 कोई भी एक नंबर है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 लिख सकते हैं। ओके, अब 4 और 6 में देखेंगे, 4 और 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 4 और 5 में देख करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब जो हमारा रिमाइंडर होगा 4 को 30 से डिवाइड करने पे, वो 2 × 1, ये जो 2 है और ये 1 है, ये हमारा 2 आ जाएगा, दैट विल बी आवर रिमाइंडर। तो हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि 30 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 28 + 2 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 2 आएगा। सिमिलरली, ठीक है, दैट इज द वे हाउ विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, 31⁻35, सॉरी 25 ÷ 7, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 7 और यहाँ 25 है, तो हमें क्या करना होगा कि एक जस्ट कम के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, 31 × 6 × 31 × 6 × 31 × 6 × 31 × 6 × 31 लिख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 कर देंगे। ठीक है, अब ये ये एक प्रॉपर्टी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 31 बचा।
और 7 को 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, दैट इज हाउ विल बी सॉल्विंग। सिमिलरली आप ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये आप ट्राई करिए। ये हैव ये आप ट्राई करिए, ये वाला हम बता देते हैं। ओके, कि हमारे पास 71 है, 37 है और 112 है, जिसको क्या लिख सकते हैं, 71 रेज टू पावर 36 लिख सकते हैं, इंटू 71 रेज टू पावर 36 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, 108 हो जाएगा और लास्ट में 71 रेज टू पावर 4 बचेगा। फोर फोर बचेगा तो वो निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग 109 कर देते हैं। ठीक है, 109 तो 36 36, ये 36 इंटू 71/37 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 31 ये है 71 है। तो 71 है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 31 का, तो 34 हो जाएगा। तो 1 × 1 × 1 × 34, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। 11 को 64 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 66 रहता तो 2 बचता, 2 आ जाएगा। ओके, फिर 197 है, 197 के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 198 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली 819 है, 819 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 49, क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा। ठीक है, ठीक है, फिर अब ये करके देखते हैं, ये कितना बचेगा, 4 है, ये 4 बचेगा। 4 बचेगा तो क्या आया, 4 × 2 × 10 × 5 आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना कि दो दो को कंबाइन कर लेंगे, दो को कंबाइन कर लेंगे, तो ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 20 × 20 हो जाएगा, और 11 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के 9 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब 9 9 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में कट जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हाँ 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 × 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, 81, 9 × 9 81 हो जाएगा, 81 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 77। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। तो सिमिलरली इसी तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिविजिबिलिटी। सो डिविजिबिलिटी में एल ट्राई की बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। सिंपल आप लोग को बता देंगे कि कैसे आप लोग कोई भी डिविजिबिलिटी फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 का आई थिंक सबको पता होता है, और 4 का भी सिमिलर ही है। 4 जो होता है, 2 और 3 का पता है, 4 का भी पता ही होगा सबको, 6 का भी पता होगा, 5 का भी पता होगा आई थिंक, 7 में प्रॉब्लम होता है, 9 में प्रॉब्लम होता है, 8 में प्रॉब्लम होता है, इसके आगे जब भी बढ़ते हैं, ये 7 के आगे बढ़ते हैं या 6 के आगे बढ़ते हैं वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो जब भी 2 के मल्टीपल में आता है, मतलब 2 पे पावर वाला आता है, तो हमें ना क्या करना होता है कि 100 10 100 1000 इस तरह का फॉर्मूला बनाना होता है। जैसे एग्जांपल, लेट्स सपोज 2 है, तो 2 में हम क्या करते हैं कि 10 के आगे का नंबर्स देखते हैं, 1 को हटा देते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट में लेट्स सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये देखते हैं कि ये अगर इवन नंबर है, 2 4 6 ऐसे, तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। सिमिलरली अगर 2 रेज टू पावर 2 का देखेंगे तो 4 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम क्या करते हैं ना कि 2 डिजिट देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 100 है, 100 04 है, तो ये 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो सारा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लेट सपोज 116 है, तो ये जो 16 है ये 4 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल होगा। उसी तरह
199 आया। तो ये 99 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली 2 रेज टू पावर 3 देखते हैं, तो 2 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 के लिए क्या करना होता है ना, कि हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है। ठीक है, जैसे 215 देख लो, या 216 देख लेते हैं, ऐसे ये लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है, उसके आगे कुछ भी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह सिमिलरली 2 के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स 3। थ्री थ्री में क्या होता है ना कि 27 के बाद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो 3 में क्या करते हैं ना, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 के लिए देख लेते हैं। जिसमें सिमिलर होता है कि ऐड करो, अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो डिविजिबल है 3 का। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो डिविजिबल है 9 का। जैसे एग्जांपल है 27, तो 7 + 2, ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो सिमिलरली वो 3 से डिविजिबल हो गया। उसी तरह 9 क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर 9 से भी डिविजिबल होगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना होता है। ये 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, फिर